Hmm. Hmm. Chapter 2, Shlok 22. Hmm. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपाराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि. यदि आप ही पढ़ लो अभी यहाँ पे आप पढ़ो As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. Purport: change of body by the atomic individual soul is an accepted fact. Even the modern scientists who do not believe in the existence of soul, but at the same time cannot explain the source of energy from the heart, have to accept continuous change of body, which appear from childhood to boyhood and from boyhood to youth, and again from youth to old age. From old age, the change is transferred to another body. This has already been explained in a previous verse 2.13. Transference of atomic individual soul to another body is made possible by the grace of Supersoul. The Supersoul fulfills the desire of the atomic soul as one friend fulfills the desire of another. The Vedas, like the Mundaka Upanishad as well as the Shvetashvatara Upanishad, compares the soul and the supersoul, two friendly birds sitting in the same tree. One of the birds, the individual atomic soul, is eating the fruits of the tree, and the other bird, Krishna, is simply watching. His friend of these two birds, although they are same in quality, one is captivated by the fruits of material tree, while the other is simply witnessing the activities of his friend. Krishna is the witnessing bird and the Arjun is the eating bird. Although they are friends, one is still master and other is the servant. Forgetfulness of this relationship by the atomic soul is the cause of one's changing his position from one tree to another or from one body to another. The Jiva soul is struggling very hard on the tree of the material body. But as soon as he agrees to accept the other part as the supreme body, as the, but as soon as he agrees to accept the other bird as the supreme spiritual master, as Arjun agreed to do so voluntarily, surrender into Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all limitation. Both the Mundaka Upanishad and Shvetashvara Upanishad 4.27 confirm this. सामने वर्गे पुरुषो मिमांगो निश्रया सोचति मोहया मनः जस्ताम यदा पश्यति अन्यम शिम अस्य महिमानम इति विता शोकः. Although the two birds are the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruits of the tree. But in some way or another, he turns his face to the friend, the Lord, and knows his glories. At once, the suffering bird becomes free from all anxieties. Arjun has now turned his face towards the eternal friend Krishna and is understanding the Bhagavad Gita from him. And thus, hearing from Krishna, he can understand the supreme glory of the Lord and be free from lamentation. Arjun is advised here by Lord not to lament for the bodily change of the old grandfather and his teacher. He should rather be happy to kill their bodies in the righteous fight so that they may be cleaned at once for all, at once of all reactions from various bodily activities.
One who lays down his life on the sacrificial altar or in the proper battlefield is at once cleansed of bodily reactions and promoted to the higher status of life. So there was no cause of Arjun's lamentation. इस श्लोक में ना प्रभुपाद जो है वो बेसिकली ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में, भगवान ने तो ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में बताया है. ही इज गिविंग ए वेरी डाउन टू अर्थ एग्जाम्पल. भाई पहले एक श्लोक में तो उन्होंने बताया ही था कि देहो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, है ना, जैसे से मतलब बॉडी जो है ना कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरत तत्र न मुह्यति. कि मतलब जो जब जो है देहांतर होता है तब क्रम है उसमें क्रम है जो धीर लोग हैं वो बिल्डर नहीं होते. अच्छा, यहाँ पर उसी का फर्दर है कि क्रम है इट इज ओनली, जैसे कि आप पुराने कपड़े पुराने हो जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही शरीर जो है वो पुराने शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर देता है. प्रभुपाद जी ने यहाँ पर सोल के बारे में क्रम है कि बताया है क्रम है कि भाई सोल और सुपर सोल जो बता रहे हैं कि टू बर्ड्स आर सिटिंग, और एक बर्ड जो है फ्रूट खा रही है, दूसरा बर्ड देख रहा है. अच्छा, अब जो पहली बर्ड फ्रूट खा रही है तो इसका मतलब फ्रूट का मतलब ये है कि वो हर तरह के कर्म कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है, तो कर्म है वो उसी के साथ साथ वो रिएक्शंस भी कर्म है एकुमुलेट करता जा रहा है. और मतलब यहाँ पर तो अकर्म विकर्म और कर्म सभी कुछ कर रहा है ना. लेकिन जैसे ही वो ये एक्टिविटी छोड़ करके भगवान की तरफ मुड़ करके देखता है तो फिर तुरंत उसका प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है. ये जो है वो जो है मतलब फिर जो है ना भगवान उसका सारे जो है वो जो जो उसको उसको फिर दोबारा नहीं आना पड़ता है इस दुनिया में. एक बार अगर उसने भगवान को, तो फिर उसको पेड़ वेड़ मतलब उसको उसको फिर ऐसा शरीर मिल जाता है जिसमें कि दोबारा उसको नहीं आना पड़ता अगर भगवान की शरण में चला जाता है तो, है ना. तो यहाँ पर ये तो भगवान जो है ये यही बताने की मतलब ये प्रभुपाद ने तो इसको दूसरे डायरेक्शन में ले गए हैं कि क्या नाम है. पहले तो भगवान ने बताया था सोल की इनविंसिबिलिटी की, सोल जो है खत्म नहीं होती है. यहाँ पर वो बता रहे थे कि भाई देह त्याग कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है. देह त्याग जो है इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम सोच रहे हो. हम्म. भाई एक्चुअली इस वाले श्लोक से और थोड़ा सा मैं जो रिफ्लेक्ट भी कर रहा था पिछले कुछ दिनों से ना कि सोल के बारे में ना जैसे और सारी जो चीजें हमको पता ही हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल है, इनविंसिबल है, इमेजरेबल है. बट एक चीज और भी थी कि द सोल इज ऑल द टाइम एक्टिव. इट कैन नॉट रिमेन एट स्टिल. इट इज नॉट इनर्ट. इट इज ऑल द टाइम एक्टिव. अच्छा, फिर उसके बाद जो एक नई चीज भी पता लगी है ना कि भाई द सोल इज ऑल द प्लेजर सीकिंग में लगा रहता है पूरे टाइम. इसलिए उसको ये नई बॉडीज एक्सेप्ट करनी पड़ रही हैं, न्यू मटेरियल बॉडी. अच्छा, अगर आप मटेरियल प्लेजर सीख सोल जो है सीख करता रहेगा, इट इज आई थिंक जो थोड़ा सा ना कि मतलब सोल इज प्लेजर सीकिंग. अब वेदर इट इज स्पिरिचुअल और मटेरियल. अब अगर आप मटेरियल प्लेजर सीख करते रहोगे तो आपको न्यू मटेरियल बॉडीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. और अगर आप करेक्ट. स्पिरिचुअल करने लग जाओगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भगवान की मर्जी से you can go on doing that as well as you can accept eventually a spiritual body. Then you won't have to accept material body. भाई अब तो अब ये अगर थोड़ा सा लॉजिकली भी ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि देखो मटेरियल फ्रूट्स को क्या नाम है टेस्ट करने के लिए तो मटेरियल सेंसेस चाहिए. हम्म, मटेरियल वर्ल्ड हम्म, में तुम्हें रहना पड़ेगा. अब मछली जो है वो पानी हम्म, में रह करके ही आनंद उठा सकती है. उसको बाहर ले हम्म, आओगे तो खत्म हो जाएगी. उसी समझ तरह गया. से जो 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 मटेरियल सेंसेस को अगर एंजॉय करने में आपका मन लगता है तो फिर आपको रिपीटेडली मटेरियल बॉडी भगवान जो है देते रहेंगे.
लेकिन अगर आपने क्या नाम है ये मनुष्य का शरीर स्पेशली है, इसके अंदर में उसमें अगर आपने कल्टीवेट करना स्टार्ट कर कल्टिवेट दिया। करना स्टार्ट कर दिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वाइल लिविंग इन दिस बॉडी इटसेल्फ, यस। तो फिर यस। आपको स्पिरिचुअल बॉडी के साथ में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहने को मिल जाएगा। जैसे वो कहते नहीं है मतलब कि ये जगत मिथ्या नहीं है, इट इज नॉट फॉल्स, इट इज रियल एंड इट इज एन इमेज ऑफ द एक्चुअल कर्म वर्ल्ड, जैसे कर्म है ऑफ राइट। द इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो हर चीज जो यहाँ पर है वो वहां पर भी है, बट उनका कर्म है उसका जो 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 वो आनंद है वो बिल्कुल डिफरेंट है वहां पर। अब जैसे हर, इसी में हर ना, इसी में मुझे यही लगता है कि अभी हमको ना इस समय कि वी शुड गो ऑन कल्टिवेटिंग दिस स्पिरिचुअल। जब प्लेजर तो लेने का बहुत मन करता है, राइट, rather than doing material, but try to go towards the spiritual, जैसे कि भाई ये पढ़ के या कृष्णा कथा करके, या फिर मतलब इधर ये जैसे और ये लोगों के साथ, क्योंकि दैट विल गिव यू द सोल को फिर सेटिस्फाइड रहेगा सोल। भाई जैसे इसमें देखो। भी कहा हुआ है ना कि हम्म, जब सोल जो है वो सुपर सोल की तरफ देखने लग जाता है इन दैट एग्जाम्पल, जब तब ही स्टार्ट गेटिंग प्लेजर, पीस एंड जॉय। ये जो जो तुमने कहा है ना, ये दो वर्ड्स के भी एग्जांपल से है कि प्लेजर सीक करना इज नॉट रॉन्ग। यू सी वो प्लेजर तो हमारा तो सीक बेसिक करना फंडामेंटल मतलब है। ओनली थिंग इज कि ये जो मटेरियल सेंसेस के थ्रू मटेरियल प्लेजर जो है वो टेम्पररी है, और उसके लिए आपको रिबर्थ लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, वो एक तो एक और भी चीज है, एक तो कल भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि उसके कुछ और भी कोरोलरीज हैं हम्म। मटेरियल प्लेजर के। वो तब होता है जब सेंस ऑब्जेक्ट से जुड़ते हैं, दैट मीन्स समथिंग एक्सटर्नल टू यू, तो योर इट इज इमीडिएटली कनेक्टेड टू द मटेरियल वर्ल्ड, फिर वो टेम्परेरी है, दुखालयम है, ऑल दैट कम्स इनटू इफेक्ट, इट जस्ट हैज टू। वेयर अगर आप स्पिरिचुअल इसमें देखें तो द सोल इज लुकिंग एट द सुपर सोल, सोल भी इटर्नल है, सुपर सोल भी इटर्नल है। वेरएज उसमें क्या है, सेंस भी टेम्परेरी, सेंसेस मटेरियल सेंसेस एंड द मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट सब टेम्परेरी है, तो प्लेजर भी टेम्परेरी है। वेरएज इसमें ऐसी मतलब देख रहा हूँ इट्स लाइक इमेज, लाइक सोल जो है उसमें इटर्नल है, सुपर सोल भी इटर्नल है, जैसे इस एग्जाम्पल में भी। तो दैट प्लेजर ऑल्सो इज इट्स इज मच मोर लास्टिंग। कभी भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो तो यू स्टार्ट गेटिंग द प्लेजर ऑफ कृष्ण कथा। भाई वही बात है ना कि यू सी आप भगवान के अंश हैं, लेकिन अब भगवान और आप टुगेदर जो है ना इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस बॉडी में ही रहना पड़ रहा है, इस बॉडी में ही रहना पड़ रहा है। अब वो आपको आपकी कंडीशनिंग हो गई, आपकी कंडीशनिंग हो गई, तो आप भगवान के साथ में रिलेशनशिप ही नहीं डेवलप कर पा रहे हो। जैसे ही आप रिलेशनशिप डेवलप करोगे तो फिर आपका ये जो कंडीशनिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी, आपके मटेरियल सेंसेस स्पिरिचुअलाइज होना शुरू होंगे एंड यू विल बी स्टार्टिंग आप भगवान को आप दर्शन कर सकेंगे। आपको क्या नाम है मतलब यू मे बी एबल टू, मतलब ये तो अभी हमारे लिए तो ये सब सुनी सुनाई और शास्त्रों में पढ़ी हुई बातें हैं, बट ये ऐसे ही तो हाँ, नहीं आ गया है शास्त्रों में, faith, हाँ, है ना। दैट वी हैव टू हैव फेथ। फेथ क्या मतलब बिल्कुल कोई डाउट ही पक्का नहीं है। है। तो फिर हाँ। यही यही है कि भाई जो जो आप क्रम है मतलब जो चीज आप यहाँ पर जो मटेरियल प्लेजर है वो उसका डायमेंशन वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये भी एक बात यस। है ना यस। कि तो इसलिए जैसे आइडिया भाई अभी इज। श्रीला प्रभुपाद, जैसे जस्ट टू दैट corroborate दैट, जैसे हरी शौरी डायरीज और ये अभिराम के उसमें भी, जैसे उसमें एक इंस्टेंस बताया उन्होंने, भाई श्रीला प्रभुपाद वाज mostly in Golok Vrindavan. He was like towards the end of his time. He would keep, he was so much into that area that he was not living just in this dimension. He was living in another dimension. So you can keep cultivating it, I think, is what the idea is. Not just otherwise you are close to it, you can continue doing this material activities. भाई ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये वाला।
एक्चुअली तो इस श्लोक में बड़ी फंडा मतलब वो सिंपल चीज बता रहे हैं। वो खाली ये बता रहे हैं अर्जुन से कि भाई तुम्हें इनको मारने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनको जो है दूसरा शरीर मिल जाएगा। तुम नहीं मारोगे तो अपने आप मरेंगे, मैंने तो इनको मार दिया ही है ना। तो लेकिन क्रम है इसमें तुम इनके लिए भलाई करो, बिकॉज राइट। तुम्हारे। हम्म, लेकिन मुझे ना हमेशा ये नहीं समझ में आता था कि वाई यू हैव टू एक्सेप्ट दिस न्यू मटेरियल बॉडी। ये भी मेरे को, क्योंकि अब थोड़ा सा ये समझ में आया कि वो सोल या की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है प्लेजर सीकिंग। इट इज नॉट, जैसा आपने कहा ना, प्लेजर सोल की सीक इंटर करना इज नॉट इंटर रॉन्ग। इंट्रिंसिक, नो, प्लेजर सीकर सीकिंग इज नॉट रॉन्ग, ओनली थिंग इज नॉट कि रॉन्ग। आपको अपने प्लेजर को मतलब प्लेजर सीकिंग को स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या नाम है हायर मतलब टेस्ट, अब वो हायर समझ में टेस्ट आता, डेवलप हायर करना टेस्ट। पड़ेगा। और यहाँ पर यू सी व्हाट इज द लॉर्ड डूइंग, व्हाई इज एक्चुअली ही इज अवॉर्डिंग द न्यू बॉडी। अच्छा, अब वो देख रहे हैं आपको कि आप जो है ना, आपके दिमाग आपके अंदर डिजायर्स हैं, आप वो वाला फ्रूट खा करके खुश हो रहे हैं, है ना। और वो वाला उसके साथ साथ एक कंपनी पेन को झेल करके भी आपके अंदर में उनकी तरफ भगवान की तरफ देखने की इच्छा नहीं हो रही है। फिर भगवान कहते हैं भाई ये वाला शरीर ले लो तुम, इसके बाद ये वाला शरीर तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो मटेरियल वर्ल्ड की ये प्रॉपर्टी ही है। फिर अगले बार एक और शरीर दे देते हैं उनको। लेकिन वो भगवान जो है उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो ये चीज जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस श्लोक में तो उन्होंने भगवान ने केवल अर्जुन को यही कहा है कि भाई ये जो है ना, जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं तो उसको चेंज करके नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह से ये जो आत्मा जो है वो पूरा शरीर पुराना हो जाता है तो उसको छोड़ के नया शरीर धारण कर लेती है ना। और यस। इसमें क्रम आत्मा नहीं मरती है, आत्मा तो दूसरा शरीर मिल जाता है ना। और डिपेंडिंग ऑन हिज कर्मा के हिसाब से अपने उसके अपने जो कर्म है पिछले जन्म के, पिछले से पिछले सारे जो एकुमुलेटेड कर्मा है, उसके हिसाब से उसको एक बॉडी अवॉर्ड हो जाती है ना। ये सब फैक्ट है। अदरवाइज आप सोचो ना, कोई भी आदमी जो है, अगर आप सोचें जरा इसको थोड़ा और डीपर लेवल पे, कोई आदमी ब्लाइंड पैदा हुआ वो कहे यार क्या ना, मैंने क्या ऐसा किया था जो मुझे पूरा अंधा ही बना के पैदा किया है आपने। तो फिर वो कहे, लोग कहेंगे कि मतलब कि भाई कि तुम्हारे पुराने कर्म हैं। तो फिर वो कहेगा कि यार मेरे पास तो एक यही जीवन है, अब पुराने कर्म मुझे तो नहीं पता कि पुराना कर्म वगैरह क्या चीज होती है। दूसरा वो ये भी कह सकता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, बाकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया। तो एक ही प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन मिलता है, एक ही प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन मिलता है कि भाई जो आपकी रिबर्थ होती है और रिबर्थ में आपको जो पुराने कर्म है उसके हिसाब से आपको शरीर लेना ही पड़ता है। पुराने कर्मों का एक रोल है। देखो उसने अभी मुझे एक और वो श्लोक याद आया जिसमें उन्होंने कहा ना कि चार तरह के लोग आते हैं। वो चार तरह के लोगों को भगवान ने उसमें वर्ड यूज किया है, सुकृतो जन, मतलब जो लोग पायस एक्टिविटी करते हैं वो भगवान के पास आते हैं, हम्म। है ना। तो एग्जैक्टली। यूसी का नाम है मतलब अगर आपने पिछले जन्मों में हम्म। पायस एक्टिविटीज की है तो फिर तो इसका मतलब पिछले जन्म की बात तो माननी ही पड़ रही है ना। मतलब जो जो रिबर्थ वाली बात में तो कोई डाउट नहीं है ना। और पास्ट कर्मा में भी कोई डाउट नहीं है। और पास्ट कर्मा को से निजात पाने का एक ही तरीका है कि भगवान के पास में जाना। सुख का ना, चार तरह के लोग जाते हैं। तो धीरे धीरे करके उनका प्यूरिफिकेशन होता है, फिर वो भक्त बन जाते हैं, फिर वो मतलब वो है ना, मतलब विदाउट एनी फ्रूटिटिव डिजायर के क्या नाम है वो भगवान की सेवा डिवोशनल सर्विस करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जा में आ जाते हैं। ये ठीक है। Yep. ओके।